everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to start another chapter of class 6, that is sorting materials into groups. If you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon to get notified. Also, you can follow me on my Facebook page, link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. So, today we are going to read about these topics. Today we are going to read about objects around us, means what are the terms that we have to know before we get more into the chapter. What are the things that makes everything around us? All these topics we are going to cover under this, that is objects around us. Next we will learn about some characteristics of materials and then some important properties of materials. ठीक है? So let us first start with learning few terms that is important to know this chapter better. First is matter. Matter किसे कहते हैं? Anything which occupies space and has mass is called matter. ऐसी कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या जिसका कुछ मास है, जिसका कुछ क्वांटिटी उसमें है, जिसकी वजह से वो तैयार हुआ है, जिसके that is what it is made up of, that is called matter. ठीक है? अब फिर material क्या है? What is material then? A specific sample of matter is called material. कोई specific जो sample है किसी matter का, उसको कहेंगे हम material. जैसे कि wood. Wood is a material. ठीक है? Next comes another term, that is substance. Now a substance refers to either a pure chemical element or compound. ठीक है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आयरन, वाटर, दीज आर प्योर केमिकल एलिमेंट्स और यू कैन से कंपाउंड. सो इन्हें कहते हैं सब्सटेंस. ठीक है? सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू हैव टू नो, दैट इज मैटर, मटेरियल एंड सब्सटेंस. मैटर क्या है? वो चीज़ें, वो कोई भी चीज़ें जो स्पेस ले रही है एक और उनमें कुछ मास है, उसे कहेंगे मैटर. किसी स्पेसिफिक मैटर को कहेंगे हम मटेरियल और कोई प्योर मटेरियल होगा, प्योर एलिमेंट या कंपाउंड होगा, उसको कहेंगे सब्सटेंस. ठीक है? नाउ देयर आर 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू नो, दैट इज all things are made up of one or more materials or substances. सारी चीज़ें एक या एक से ज़्यादा मटेरियल या सब्सटेंस से तैयार होती है. कैसे? Here, see, this is a rice. This is a picture of rice. Now this rice have been made up of more substance, one or more substances. Like it contains water, it contains spices. इसमें पानी है, spices है, other vegetables है. So ये एक ही चीज़ है. ठीक है? एक थिंग है जो कि बहुत सारे मटेरियल या सब्सटेंस से बनी हुई है. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज अ मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. अब एक ही कोई मटेरियल, ठीक है, एक ही कोई मटेरियल बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. कैसे? सी, this is wood and wood can be used to make different materials. I have given 2 examples, that is wooden box is also made up of wood and wooden vase is also made up of wood. ठीक है? Now same things can be made from different kind of materials. अब ऐसा भी होता है कि कोई एक चीज़ है जो कि सेम चीज़ है बट वो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है. जैसे यू कैन सी दिस इज अ वुडन वास. ठीक है? बट इट इज अ वास. नाउ सी देर इज अ ग्लास वास. ठीक है? नाउ दोनों ही वासेस हैं बट वन इज मेड अप ऑफ वुड, अनदर इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है? नाउ मटेरियल्स मे बी नेचुरली अकरिंग और मैन मेड.
अब कुछ कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो नेचर से हमें मिलता है, दैट इज नेचुरली अकरिंग, और कुछ कुछ मैन मेड होती हैं। जैसे कि ये जो ग्लास है वो क्या है, वो मैन मेड है, वो हमें नेचर से नहीं मिलती, बट एट द सेम टाइम दिस वुड एंड दिस कॉटन इज नेचुरल, दीज आर अकरिंग इन नेचर. So this was all about matter, material and substance. Okay. Next we will discuss about some common characteristics of materials. कुछ common characteristics जो हर material में होते हैं. क्या होता है? All materials can be felt by one or more of our senses. ठीक है, सारे materials could be felt, हम उसे फील कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन की हेल्प से. जैसे कि हम किसी परफ्यूम का स्मेल ले सकते हैं, ठीक है. देन हम किसी चीज़ को टच करके बता सकते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज सॉफ्ट टू टच वेयर एज वुड इज हार्ड टू टच. तो ये हमारा स्किन है जो फील्स का सेंसेशन हमें देता है और उससे हमें पता चलता है कि वो मटेरियल कैसा है. तो सारे चीज़ों को ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट वन बाय वन और मोर सेंसेस. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस. अब सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो एक स्पेस लेते हैं, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल दिस बुक ऑन द टेबल ऑक्यूपाइज अ स्पेस. ठीक है, एक स्पेस लेके वो टेबल पे है. ठीक है. ऑल्सो अनदर कॉमन प्रॉपर्टी इज ऑल मटेरियल पोजेस मास. सारे मटेरियल्स का एक मास होता है. अभी मास क्या होता है, लेट अस सी द डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. किसी भी मैटर में उसका किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका जो मैटर होता है, जितना मैटर क्वांटिटी का होता है वो क्वांटिटी कहते हैं मास. किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना क्वांटिटी मैटर होता है उस चीज़ को कहते हैं मास. ठीक है. द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास. तो सारी चीज़ों में ऑल मटेरियल पोजेसेस अ मास. ठीक है. सो दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एवरी मटेरियल विल हैव. कि उन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, सारे मटेरियल्स को हम फील कर सकते हैं. सारे मटेरियल्स एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सारे मटेरियल्स में एक मास होता है. क्लियर? Now next we will discuss some important properties of material. कुछ important properties material के जिसके basis पे materials को classify कर सकते हैं. ठीक है. क्या क्या है? First is physical properties. Now you can see physical properties or physical state are three. Those are gas, liquid and solid. In this one picture you can identify this very well. ये जो उसके धुआं निकल रहा है चाय में से, दैट इज द गैस. द वेपर्स आर द गैस. नेक्स्ट इज द टी इज द लिक्विड एंड द कंटेनर इन विच इट इज बीन केप्ट, दैट इज द सॉलिड. ठीक है. नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स अंडर दीज कैटेगरीज. सॉलिड में क्या है? आइस है, ब्रिक है, वुड है, आयरन है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. सिमिलरली लिक्विड्स में क्या होंगे? विनेगर है, वाटर है, and there are few gases. Those are helium, oxygen, carbon dioxide. These are the examples of gas. इन चीज़ों के बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा, उसके फिजिकल स्टेट को देख के हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉलिड है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर अपीयरेंस. वो कैसे दिखते हैं. नाउ दिस विल हैव फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट इज कलर. उनके कलर को बेस करके भी वी कैन फाइंड आउट विच काइंड ऑफ मटेरियल इट इज. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल मटेरियल्स के क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, गोल्ड का गोल्डन कलर है एंड सिल्वर का सिल्वर कलर होता है. तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि येस दिस इज द गोल्ड एंड दिस इज द सिल्वर. नेक्स्ट इज
लस्टर, ठीक है, मतलब उसका जो शाइननेस होता है उसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे मेटल्स शाइनी होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, जो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक शाइन हो गया, क्योंकि हर मेटल का एक शाइन होता है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को इन केस ऑफ मेटल क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। नाउ ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं दैट डू नॉट शाइन। कैसे? सी, दिस वुड डजंट शाइन बट दिस सिल्वर डज शाइन। So certain metals such as copper, aluminium, silver lose their shine when exposed to air, particularly humid air. Once clean, all metallic objects start shining once again. तो कुछ चीज़ें होते हैं जिनका शाइनेस नहीं होता, जिनका लस्टर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल वुड। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी शाइनेस होती है बट वो ह्यूमिड एयर के साथ कांटेक्ट में आके अपना शाइन लूज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो बट वो दोबारा से अपना शाइननेस, अपना लस्टर गेन कर लेते हैं वंस दे आर क्लीन, फॉर एग्जाम्पल लाइक सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्सचर। अब कुछ चीजें क्या होती है, सर्टेन मटेरियल्स आर स्मूथ एंड देयर आर फ्यू मटेरियल्स विच आर रफ टू टच। तो उनके टेक्सचर को फील करके भी हम बता सकते हैं कि ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्क इज वेरी मच स्मूथ, यू कैन सी सिल्क इज वेरी मच स्मूथ, वेयर एज वुल जो होते हैं वो थोड़े से रफ टेक्सचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्डनेस। नाउ हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सम मटेरियल्स आर वेरी हार्ड एंड सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट। जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल नोन है दैट इज द डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल एंड डायमंड कैन कट द ग्लास ऑल्सो, ठीक है, इतना ही वो हार्ड होता है। अब कुछ सॉफ्ट मटेरियल्स भी होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स भी होते हैं जिनको ईजिली प्रेस करके पाउडर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल चॉक, चॉक इज अ सॉलिड बट दैट इज अ सॉफ्ट सॉलिड, जिसको तुम क्रश करके स्मॉल पाउडर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में ट्रांसफर करके उसको पाउडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हार्डनेस ऑफ वुड जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वुड पे। हार्डनेस ऑफ वुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वुड। टीक, शीशम वुड आर वेरी हार्ड, ठीक है। नाउ कॉटन जो है दैट इज वेरी मच सॉफ्ट बिकॉज इट ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर इन इट। अब हार्ड सबसे ज्यादा क्या है, डायमंड, और सॉफ्ट का एग्जाम्पल क्या है, दिस कॉटन। दिस कॉटन इज वेरी मच सॉफ्ट, वाई, बिकॉज इट ट्रैप्स लॉट ऑफ एयर, उसमें बहुत ज्यादा एयर ट्रैप करने का कैपेबिलिटी है, दैट इज वाई इट इज सॉफ्ट, ठीक है। सो दीज वर some characteristics that comes under the topic appearance, ठीक है। Next property of material is solubility in water, that is soluble or insoluble, ठीक है। अब कुछ चीजें क्या होती है, they dissolve in water whereas some others do not dissolve. The materials or substance that dissolve in water are called soluble material or soluble substances, and the material or substances that do not dissolve in water are called insoluble substances or insoluble materials. तो कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल और सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व कर जाती हैं उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल मटेरियल्स और सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एंड कुछ चीज़ें जो मटेरियल में डिजॉल्व नहीं करती उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस और इनसॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है। जो वाटर में डिजॉल्व करती हैं दोज आर सॉल्युबल, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं करती दोज आर इनसॉल्युबल। अब हम बार बार वाटर का नाम ही क्यों ले रहे हैं, दिस इज बिकॉज water can dissolve a number of many kinds of substances.
वाटर जो है वो अपने में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती है, एंड इसी वजह से वाटर इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ द मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्यूबल सब्सटेंस एंड वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब वो वाला ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकता है और वाटर है, उस पूरे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ कुछ गैसेस हमें पता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है। बट देयर आर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसॉल्यूबल। ओके। Our next property is materials may float or sink in water. ठीक है। So material those are lighter than water, they float on it, whereas those heavier than water sink in it. तो जो मटेरियल्स वाटर से लाइट होते हैं वो फ्लोट कर जाते हैं, और जो मटेरियल्स वाटर से हेवी होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, मीन्स वो डूब जाते हैं। ठीक है। So let us see few examples of such materials that float on water. ऐसे materials जो water के ऊपर तैरते हैं, those are rubber, gloves, then handkerchief, kerosene. Now kerosene is also a liquid. Kerosene भी एक liquid है, water भी एक liquid है, लेकिन ये दो liquid कभी भी mixed नहीं होते। Kerosene being heavier than water, वो क्या होता है? एक different layer ऊपर तैयार कर देता है अपने केरोसिन का। ठीक है। सो वो ऑयल जो है, मोस्टली ऑयल्स डजंट डिसॉल्व इन वाटर, दे मेक अ सेपरेट लेयर ओवर द वाटर। ठीक है। नेक्स्ट इज मटेरियल्स दैट सिंक इन वाटर। वैसे मटेरियल्स जो कि वाटर में सिंक कर जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, steel spoon, nails of iron. These are few examples where materials are sinking in the water. ठीक है। Next property is behavior towards light. This topic will include three major terms. क्या क्या terms? Transparent, opaque and translucent. Now from this figure you can see कि जिससे एक्चुअली ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं। सो वी कैन सी इन बोथ द साइड्स फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज ट्रांसपेरेंट, इसके आर पार हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। दिस इज अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं बट वेरी स्लाइटली, एंड दिस इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते। ठीक है। सो लेट अस सी द डेफिनेशंस ऑफ दीज थ्री टर्म्स। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। क्या है एग्जाम्पल्स? ग्लास, एक्राइलिक शीट, वाटर, एयर, दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो कि लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट इज ओपेक। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, दीज आर ऑल ओपेक मटेरियल्स जो कि लाइट को एकदम ही आर पार नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हम उसके दूसरे साइड में क्या रखा है, उस ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड में क्या रखा है, वो हमें नहीं दिख पाता। ठीक है। लाइक इन दिस पिक्चर वी कैन नॉट सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। अब देयर आर सर्टेन मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट to pass through them. Such materials are called translucent. अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने थ्रू थोड़ा सा लाइट पास होने देते हैं। अब
लाइट पास होना इज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर किसी चीज़ पे लाइट नहीं पड़ती है तो वो हमें चीज़ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो जब ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो अपने थ्रू सिर्फ थोड़ा अमाउंट लाइट को परमिट करता है टू पास। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के उस साइड पे क्या रखा है वो भी हम थोड़ा सा ही देख पाते हैं, दैट इज partially possible to see through those objects. Those objects are called translucent. ठीक है, क्लियर। उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लाइक ऑयली पेपर और वैक्स्ड पेपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, आई होप दीज 3 टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम कंप्लीटली देख सकते हैं, ओपेक जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, और ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार हम हल्का देख सकते हैं। ठीक है, so students, that is all about today's video. In our next video we will continue discussing this chapter. Till then, stay tuned and thank you.